پاگل خانے کا سب سے خطرناک قیدی زنجیروں میں تھا۔ اس کے پاس سے چابیوں کا گچھا ملا۔ وارڈ بوائے حیران تھا کہ چابیاں کہاں سے آئیں۔ اس نے وہ چابیاں ہسپتال کے مین گیٹ پر لگائی تو تالا کھل گیا۔ مطلب قیدی بھاگ سکتا تھا مگر نہیں بھاگا۔ اس نے بتایا، میں اس لیے نہیں بھاگا کیونکہ باہر کی دنیا میں میرا انتظار وہ لوگ کر رہے ہیں جو مجھے پاگل خانے کا سب سے خطرناک قیدی زنجیروں میں تھا، اور اس کے وجود سے پورے ہسپتال میں ایک ایسا خوف پھیلا ہوا تھا جس کی لہریں ہر دیوار اور ہر دروازے سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ قیدی کوئی عام پاگل نہیں تھا بلکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب غصے میں آتا ہے تو لوہے کی سلاخیں بھی موڑ دیتا ہے۔ اسے ہسپتال کے سب سے نچلے حصے میں بنی ایک ایسی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا جہاں سورج کی روشنی تو دور، ہوا کا گزر بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے جن کا وزن عام انسان کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن وہ ان زنجیروں کو ایسے پہنتا تھا جیسے یہ اس کے جسم کا حصہ ہو یا کوئی زیور ہو۔ اسپتال کا عملہ اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا اور نئے آنے والے ملازمین کو سب سے پہلے یہی ہدایت دی جاتی تھی کہ خبردار اس سیل نمبر 40 کی طرف کبھی مت جانا کیونکہ وہاں موت قید ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو دیکھنے والے کا خون جما دیتی تھی۔ وہ مہینوں خاموش رہتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی کوئی مطالبہ کرتا تھا، بس اپنی جگہ پتھر کی مورت بنا بیٹھا رہتا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور بالوں میں خاک اٹی ہوئی تھی، مگر اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک طوفانی رات تھی جب آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج سے اسپتال کی پرانی عمارت لرز رہی تھی۔ وارڈ میں موجود باقی پاگل مریض موسم کی خرابی کی وجہ سے شور مچا رہے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی رو رہا تھا، مگر وہ خطرناک قیدی اپنے سیل میں بالکل خاموش تھا، جیسے اسے باہر کے طوفان سے کوئی سروکار نہ ہو۔ آج رات ڈیوٹی پر ایک نیا وارڈ بوائے تھا جسے اس قیدی کی دہشت کا اندازہ نہیں تھا، یا شاید اس کے اندر کا تجسس اسے وہاں لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پرانے ملازمین نے اسے منع کیا تھا، لیکن جوانی کا جوش اور نامعلوم کو جاننے کی خواہش اسے اس کال کوٹڑی کی طرف کھینچ رہی تھی جہاں اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا تو اسے عجیب سی بو کا سامنا کرنا پڑا جو سلین اور خوف کی ملی جھولی بو تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سیل کی طرف پھینکی تو دیکھا وہ قیدی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کی زنجیریں اس کے پاس پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وارڈ بوائے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ زنجیریں کھلی ہوئی تھی اور قیدی آزاد تھا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی زندگی ختم ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قیدی نے اس پر حملہ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی پرسکون بیٹھا رہا جیسے وہ کسی گہری مراقبے میں ڈوبا ہو۔ وارڈ بوائے نے غور سے دیکھا تو اس قیدی کے ہاتھ میں چابیوں کا ایک بھاری گچھا تھا۔ یہ وہی گچھا تھا جو کچھ دن پہلے ہیڈ وارڈن کی جیب سے گم ہوا تھا اور جس کی وجہ سے پورے ہسپتال میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ وہ چابیاں کہیں گر گئی ہے یا کسی نے چوری کر لی ہے، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چابیاں اس خطرناک ترین قیدی کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ وارڈ بوائے کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔
जब उसने सोचा कि अगर उसके पास चाबियां थी, उसने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या अगर किया है वो अभी तक यहाँ क्यों बैठा है। उसकी टांगे कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत करके पूछा कि तुम आजाद हो तो भागे क्यों नहीं। कैदी ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में आज वहशत के बजाय एक अजीब सी थकन और उदासी थी। उसने चाबियों के गुच्छे को अपनी मुट्ठी में दबाया और एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज किसी पुराने कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी, भारी और गूंजती हुई। उसने बताया कि मैं आज रात इन चाबियों की मदद से अपने सेल से बाहर निकला था। मैंने ये जंजीरें खोली जो मेरे जिस्म को कैद कर सकती हैं, मगर मेरी रूह को नहीं। मैं इन सीढ़ियों से ऊपर गया जहां तुम जैसे लोग पहरा देते हैं। मैंने वो तमाम दरवाजे खोले जो मेरे और बाहर की दुनिया के दरमियान हायल थे। मैं छुपता छुपाता मेन गेट तक पहुंच गया था। वार्ड बॉय ये सुनकर पत्थर का हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को चकमा देकर मेन गेट तक पहुंच गया और किसी को खबर तक न हुई। ये अस्पताल की इंतजामिया की बहुत बड़ी नाकामी थी, मगर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर वो गेट तक पहुंच गया था तो वो वापस क्यों आया। उसने कैदी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कैदी ने एक अजीब सी तलख मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, मैं इस बड़े लोहे के गेट तक पहुंच गया था। मैंने वो आखिरी ताला भी खोल लिया था जिसके पार आजादी थी, सड़क थी और वो दुनिया थी जहां लोग अपनी मर्जी से सांस लेते हैं। बारिश हो रही थी और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मुझे वो हवा बहुत अच्छी लगी क्योंकि बरसों बाद मैंने खुली फिजा में सांस ली थी। मेरे सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी और भागने का बेहतरीन मौका था। मैं वहां से निकल कर कहीं भी जा सकता था, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क, और अपनी शनाख्त छुपा कर नई जिंदगी शुरू कर सकता था। मुझे रोकने वाला नहीं था। वार्ड बॉय ने बेताबी से पूछा, तो फिर तुम रुके क्यों? तुम वापस इस जहन्नम में क्यों आ गए जहाँ सिवाय तकलीफ और अंधेरे के कुछ नहीं है? क्या तुम्हें आजादी पसंद नहीं, या तुम वाकया पागल हो चुके हो? कैदी ने उसकी बात सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाया जो इस वीरान तहखाने में गूंज उठा। उसकी हंसी में खुशी नहीं बल्कि एक दर्द छुपा था। उसने कहा कि पागल तो वो लोग हैं जो बाहर की दुनिया को जन्नत समझते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ किसी बीमारी की वजह से हूँ, या मुझे किसी ने जबरदस्ती यहाँ डाला है? नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। ये जंजीरें मैंने खुद पहनी है और ये कैद खाना मेरी पनाह गाह है। वार्ड बॉय का जहन घूम गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई इंसान खुद को कैद क्यों करना चाहेगा। कैदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ और मेरा माजी क्या है, क्योंकि कुछ हकैक ऐसे होते हैं जिन्हें जबान पर लाते ही इंसान की रूह फना हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी के उस हिस्से को खुद से भी छुपा कर रखा है और मैं उसे कभी किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हूँ, बल्कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये दीवारें और जंजीरें मेरे लिए इस वसी दुनिया से ही ज्यादा महफूज है। वार्ड बॉय दम साधे उसकी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो किसी पागल से नहीं बल्कि एक बहुत इसरार इंसान से बात कर रहा है। कैदी ने चाबियों का गुच्छा जमीन पर फेंक दिया जिसकी छनकार सन्नाटे में गूंजी। उसने अपनी कलाइयां आगे की
और कहा कि ये जंजीरें दोबारा लगा दो, क्योंकि ये मेरी हिफाजत के लिए है। ये मुझे उन लोगों से बचाती है जिनका सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही। मैंने वहां गेट पर खड़े होकर देखा कि अंधेरे में कुछ साए मंडला रहे थे। मैं उनकी आहट को पहचानता था। वो आम लोग नहीं थे। मैं उनके अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो वही लोग थे जो मेरी जिंदगी के उस हिस्से से जुड़े हुए हैं जिसे मैं दफन कर चुका हूँ। वो जानते थे कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अगर एक कदम भी बाहर रखता तो वो मुझे जकड़ लेते और मैं दोबारा कभी वापस न आ पाता। मैंने फैसला किया कि इस कैद खाने की अजियत उस बहर के खतरनाक आजादी से 1000 गुना बेहतर है, जहाँ मुझे हर लम्हा उन सायों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ मैं कम अज़ा कम इस बात पर मुतमईन हूँ कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं किसी की पहुँच से दूर हूँ। मैंने दरवाजा दोबारा बंद किया, ताला लगाया और वापस यहाँ आ गया ताकि मैं खुद को उन लोगों से बचा सकूं। वार्ड बॉय की आंखों में तजस्सुस और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। उसने पूछा कि क्या वो लोग अभी भी वहाँ हैं? कैदी ने दीवार की तरफ इशारा किया, जैसे वो दीवार के पार देख सकता हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि वो लोग कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा वहीं रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। वो इस अस्पताल के दरवाजे पर पहरा देंगे। वो मेरी एक गलती के मुंतजिर हैं कि अब मैं आजादी के लालच में बाहर निकलूं और कब वो मुझे अपने हसार में ले ले। लेकिन वो नहीं जानते कि मैंने खुद को उनसे बचाने के लिए इन जंजीरों का सहारा ले रखा है। वार्ड बॉय ने चाबियां उठाई और उसके सेल का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा। कैदी ने उसे रोक दिया और कहा कि एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी कहानी नहीं सुना सकता और ना ही ये बता सकता हूँ कि वो लोग कौन है। बस इतना याद रखना कि मैं इसलिए नहीं भागा, हालांकि मेरे पास मौका था और रास्ता भी साफ था, मगर मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे मालूम है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाहर की दुनिया में मेरा इंतजार वो लोग कर रहे हैं जो मुझे वार्ड बॉय के कानों में कैदी के वो आखिरी अल्फाज किसी भारी बोझ की तरह बैठ गए थे। बाहर की दुनिया में उसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं जो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वो उल्टे कदमों सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया तो उसका पूरा वजूद लरज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक कैदी की बातों पर यकीन करे या उसे एक शातिर पागल का फैलाया हुआ जहली वहम समझे। मगर उसके हाथ में मौजूद उन चाबियों की सर्दी उसे बार बार उस हकीकत की याद दिला रही थी कि वो शख्स ताला खोल कर बाहर गया था और फिर अपनी मर्जी से वापस इस जहन्नम में आ गया था। वार्ड बॉय के अंदर का तजस्सुस उसे अब चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो अपनी ड्यूटी की जगह पर वापस बैठने के बजाय सीधा अस्पताल की छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की जानिब मुड़ गया। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या वाकया बाहर कोई है या ये सिर्फ उस कैदी की खलील की पैदा करदा कोई मुहीब कहानी है। छत पर पहुंचकर तेज हवा और बारिश के सर्द थपेड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। उसने दीवार की ओट लेकर नीचे मेन गेट के बाहर सड़क की तरफ झांका तो उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई और हलक में मौजूद रही सही नमी भी खुश्क हो गई। वहाँ वाक़ अस्पताल के बड़े गेट से कुछ फासले पर अंधेरे में 3 स्याह रंग की बड़ी और भारी गाड़ियां खड़ी थी जिनके इंजन स्टार्ट थे मगर हेडलाइट्स बंद थी। बारिश की वजह से मंजर धुंधला था, मगर वार्ड बॉय ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा कि गाड़ियों के पास चंद साए खड़े हैं जिन्होंने सियाह बरसाती कोट पहन रखे थे। वो बिल्कुल साकित खड़े थे।
और उनका रुख अस्पताल के गेट की तरफ था। वो आम लोग नहीं लग रहे थे। उनके खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सा फौजी जब्त और एक शिकारी जैसा सब्र छुपा था। वो वहाँ किसी मरीज की खैरियत पूछने नहीं आए थे और ना ही किसी हादसे की वजह से रुके थे, बल्कि वो वाकया किसी खास इंसान का इंतजार कर रहे थे, किसी ऐसे शख्स का जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था। वार्ड बॉय का दिल अब पसलियों से टकराने लगा था। उसका मतलब था कि सेल नंबर 40 का कैदी कोई मामूली मुजरिम या जहनी मरीज नहीं था, बल्कि वो वाकया कोई ऐसी ताकत थी जिसके एक इशारे पर ये लोग बाहर मौत की तरह खड़े भीग रहे थे। वार्ड बॉय ने सोचा कि अगर कैदी बाहर चला जाता तो शायद ये लोग उसे ले जाते और फिर क्या होता। ये सोच कर ही उसे एक नामालूम खौफ घेरने लगा। वो फौरन नीचे भागा और उसका इरादा था कि वो डॉक्टर को सब बता दे, मगर फिर उसे कैदी की वो उदास आंखें याद आ गई। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो शायद उस कैदी की वो पनाहगाह छिन जाएगी जिसे उसने इतनी मुश्किल से तलाश किया है। वो दोबारा उसी तहखाने की तरफ गया जहाँ वो पुर इसरार वजूद मौजूद था। अब उसे उस कैदी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई थी कि इतना ताकतवर इंसान जिसके लिए बाहर पूरा लश्कर खड़ा है, वो यहाँ गंदगी और अंधेरे में सड़ रहा है सिर्फ अपने माजी से बचने के लिए। जब वो सेल के पास पहुंचा, कैदी दीवार से टेक लगाए बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। वार्ड बॉय ने आहट की, कैदी ने आंखें खोल दी और उसके होठों पर वही तल्ख मुस्कुराहट आ गई। उसने वार्ड बॉय के चेहरे के असरात को पढ़ लिया था और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि तुम देख आए ना उनको, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वार्ड बॉय ने खामोशी से सर हिलाया और वही सलाखों के दूसरी तरफ जमीन पर बैठ गया। उसने पूछा कि आखिर तुम हो कौन और बाहर खड़े वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? क्या तुमने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से वो तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं? कैदी ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी जंजीरों की तरफ देखा। उसने कहा कि मेरा नाम और मेरी पहचान इस वक्त इस अस्पताल के रिकॉर्ड से मिटाई जा चुकी है, इसलिए तुम्हें दफ्तर में मेरी फाइल नहीं मिलेगी। वार्ड बॉय ये सुनकर हैरान रह गया कि कैदी को ये भी मालूम था कि वो दफ्तर गया था। कैदी ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि बाहर खड़े वो लोग मेरे दुश्मन नहीं, बल्कि वो वफादार सिपाही हैं जो मुझे दोबारा उस गंदे खेल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इससे मैं खैर बाद कह चुका हूँ। वो मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाना चाहते हैं ताकि मैं दोबारा उनकी क़यादत करूँ और शहर में दोबारा वही खौफ का राज हो जो कभी मेरे नाम से जुड़ा था। वार्ड बॉय ने पूछा कि अगर तुम इतने ही बड़े आदमी थे तो तुमने ये रास्ता क्यों चुना? कैदी ने अपनी कलाइयाँ दिखाई, इन पर जंजीरों के जख्म अब दामी हो चुके थे। उसने कहा कि ताकत एक ऐसा भूत है जो इंसान को खा जाता है। मैंने बरसों उस भूत को पाला और फिर एक दिन उसने मेरे ही अपनों को निगल लिया। मैंने वो सब कुछ खो दिया जो मेरे लिए अजीज था और तब मुझे एहसास हुआ कि ये बादशाहत नहीं बल्कि एक बददुआ है। मैंने खुद को पागल जहर किया ताकि मैं उन लोगों की पहुंच से दूर हो सकूं जो मुझे अपना लीडर मानते हैं। मैं उस गंदे निजाम का खालिक था और अब मैं उसका शिकार हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ताकि वो लोग मायूस होकर चले जाएं, मगर वो जिद्दी है। वो हर रोज यहाँ आते हैं और मेरा इंतजार करते हैं कि अब मेरी हिम्मत टूटे और कब मैं दोबारा उनका डॉन बन जाऊं। वार्ड बॉय अब उसके चेहरे को देख रहा था जहाँ अब कोई पागलपन नहीं था बल्कि एक ऐसी दानाई थी जो बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल की गई हो। कैदी ने सलाखों को मजबूती से थामा और उसका चेहरा वार्ड बॉय के बहुत करीब आ
गया। उसने सरगोशी में कहा कि तुम्हें पता है बाहर वो लोग मेरे लिए क्या लाए हैं? वो मेरे लिए आजादी नहीं बल्कि दोबारा वही खून आलूद लिबास लाए हैं जिसे मैंने उतार फेंका है। मैंने आज गेट खोलकर उनकी गाड़ियों की चमक देखी थी और एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा था कि मैं बाहर निकल जाऊं और दोबारा उनकी सलामी लूं, मगर फिर मुझे वो लाशें याद आ गई जिनके ऊपर से गुजर कर मैंने अपना तख्त बनाया था। इसलिए मैं वापस आ गया। मैंने ताला इसलिए नहीं लगाया था कि मैं भागना चाहता था, बल्कि मैंने ताला इसलिए खोला था कि देख सकूं कि क्या मेरे अंदर का वो शैतान अब भी बाहर चमक देख कर बेचैन होता है या नहीं। और अफसोस कि वो अब भी बेचैन था, इसलिए मैंने खुद को दोबारा जंजीरों में जकड़ लिया। वार्ड बॉय को अब महसूस हो रहा था कि वो शख्स कितना अजीम है जो अपनी इस्लाह के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो शख्स जो बाहर निकल कर दोबारा लाखों पर हुक्म चला सकता था, वो यहाँ एक वार्ड बॉय के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर रहा था। कैदी ने अपना हाथ सलाखों से बाहर निकाला और वार्ड बॉय के कंधे पर रखा। उसने कहा कि आज की रात मेरे लिए बहुत भारी है, क्योंकि बाहर खड़ा वो हजूम अब बेसब्र हो रहा है। वो शायद अब जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेंगे। वार्ड बॉय ने डरते हुए पूछा कि क्या वो अस्पताल पर हमला कर देंगे? कैदी ने नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। वो मुझे जिंदा चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी का जिंदा इंसान। वार्ड बॉय ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा, जहां अब एक अज़म झलक रहा था। उसने पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैदी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मुझे बस ये बता दो कि क्या आज भी उन गाड़ियों के दरमियान वो सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है? वार्ड बॉय को याद आया कि हाँ, उसने एक ऐसी ही गाड़ी देखी थी। उसने हाँ में जवाब दिया। कैदी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। उसने कपकपाती आवाज में कहा कि इसका मतलब है कि वो खुद आ गया है, वो शख्स जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ और जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। वार्ड बॉय ने बेताबी से पूछा कि वो कौन है? कैदी ने दीवार से सर टिका दिया और उसकी आंखें छत की तरफ उठ गई, जहां सिर्फ अंधेरा था। उसने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो किसी मरते हुए इंसान की आखिरी हिचकी जैसी थी। उसने कहा कि वो मेरा वो रूप है जिसे मैंने बरसों पहले कत्ल कर दिया था। वो शख्स जो इस वक्त बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना जमीर और मेरा वो माजी है जिसे दुनिया सुल्तान ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से जानती थी। मैं वही बदनाम जमाना मुजरिम हूँ जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं के पानी हो जाते थे। सुल्तान का नाम सुनते ही ईमानदार के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वो नाम था जो बरसों तक अखबारात की जीनत बन रहा था और जिसके खौफ से शहर की फिजा में हम वक्त एक सनसनी फैली रहती थी। वो शख्स जो अब एक पोसीदा कंबल ओढ़े अंधेरी कोठरी में पड़ा था, अभी पूरे मुल्क की तकदीर के फैसले अपनी एक उंगली के इशारे पर किया करता था। ईमानदार को यकीन नहीं आ रहा था कि वक्त की गर्दन ने इतने बड़े सुरमा को इस हाल में पहुंचा दिया। सुल्तान ने अपनी गर्दन झुकाई और एक लंबी आह भरी जो उसकी रूह की गहराइयों से निकलती हुई महसूस होती थी। उसने कहा कि तुम अब भी हैरान हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ और वो लोग बाहर क्यों खड़े हैं। देखो, ये जो सफेद सवारी तुम देख कर आए हो, उसमें वो शख्स बैठा है जो कभी मेरा दायां हाथ हुआ करता था, जिसे मैंने
अपना बेटा समझ कर पाला और जिसे मैंने इस काली दुनिया के तमाम दौपेज सिखाए थे, उसका नाम जरयाब है और वो अब मेरी जगह उस सल्तनत का मालिक बनना चाहता है। लेकिन उसे पता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरी आयद उसे हासिल नहीं होती, वो कभी भी उन तमाम धड़ों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा जो मेरे गायब होते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ईमानदार ने डरते डरते पूछा कि अगर वो आपका शागिर्द है, वो आपको मारने क्यों आया है? सुल्तान ने एक हंसते हुए जवाब दिया कि यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, जहाँ मोहब्बत और वफादारी की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ इक़्तिदार की हवस है। जरयाब जानता है कि अगर मैं बाहर आ गया तो वो कभी भी आजादाना हुकूमत नहीं कर पाएगा और अगर मैं यहाँ कैद रहा तो उसे हमेशा ये धड़का रहेगा कि किसी दिन मैं वापस आकर अपना तख्त वापस छीन लूंगा। इसलिए उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुझे अपने साथ ले जाए और दुनिया को ये बावर कराए कि मैं अब उसकी पुश्त पर हूँ, या फिर वो मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दे। ईमानदार ने महसूस किया कि उस शफा खाने की दीवारें अब उसे काटने को दौड़ रही है। उसे लगा कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश के ऐन दरमियान में खड़ा है। उसने सुल्तान से कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मालजीन को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? आपकी जान को खतरा है। सुल्तान ने अपनी जंजीरों को झटका दिया, जिससे पैदा होने वाली आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसने कहा कि मालिक क्या करेंगे, वो तो खुद इस निजाम के मोहरे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ किसी तिब्बी बुनियाद पर रखा गया है? नहीं, इस शफा खाने के सरबराह को माहाना खतीर रकम दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे इस सेल में बंद रखे और दुनिया को ये बताता रहे कि मैं एक लाइलाज जहनी मरीज हूँ तो किसी से मिलने के काबिल नहीं है। ये एक ऐसी जेल है इसका किराया मैं खुद की दौलत से अदा कर रहा हूँ, ताकि मैं उनके हाथों में खिलौना बनने से बच सकूं। ईमानदार की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसे एहसास हुआ कि ये पूरी इमारत एक धोखा है, जहाँ हर शख्स बिका हुआ है, जहाँ सच्चाई को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। अचानक ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। ईमानदार फौरन चौकन्ना हो गया। सुल्तान ने उसे इशारा किया कि वो छुप जाए। ईमानदार एक पुराने लकड़ी के तख्त के पीछे दबक गया था। थोड़ी देर बाद शफा खाने का सरबराह खुद सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। उसके हाथ में एक चमड़े का बैग था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वो सुल्तान के सेल के सामने आकर रुका और बड़ी आजिज़ी से बोला कि सुल्तान साहब, बाहर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दरयाब अब मजीद इंतजार करने को तैयार नहीं है। उसने धमकी दी है कि अगर आज रात आपने कोई फैसला ना किया, वो उस पूरी इमारत को आग लगा देगा। मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि आप कुछ कर लें, वरना हम सब मारे जाएंगे। सुल्तान ने उसकी तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में कहा कि तुमने तो कहा था कि ये जगह सबसे महफूज है। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारा लालच तुम्हारे खौफ से छोटा पड़ गया है? सरबराह ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वो तो आपका अपना खून है। आपका नाम इस्तेमाल करके उसने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि अब वो किसी कानून को नहीं मानता। सुल्तान ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें शोले बरसाने लगी। उसने कहा कि वो मेरा खून नहीं है, वो मेरी एक गलती है जिसे मैंने खुद पाला है। जाओ उससे कह दो कि सुल्तान कभी किसी की धमकी में नहीं आता। मैं यहाँ मरना पसंद करूंगा, मगर उसके नापाक इरादों की तकमील के लिए अपना नाम इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। सरबरा मायूस होकर वापस चला गया। ईमानदार जब बाहर निकला तो उसका दिल डूब रहा था। उसे लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है।
وہ دوبارہ سلطان کے قریب آیا اور کہا کہ میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس تمام کلیدی ہیں، ہم پچھلے راستے سے نکل سکتے ہیں۔ سلطان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بچے، تم بہت معصوم ہو، اگر میں یہاں سے نکل گیا تو وہ مجھے سڑک پر ہی مار دیں گے اور تم بھی مارے جاؤ گے۔ میری نجات صرف اسی صورت میں ہے کہ میں اس بھیت کو اپنے ساتھ ہی دفن کر دوں، لیکن میں تمہیں ایک کام سونپنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ایک پیغام باہر پہنچا سکتے ہو؟ تیماردار نے بنا سوچے سمجھے ہاں کہہ دی۔ سلطان نے اسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی دی جس پر ایک خاص قسم کا نقش بنا ہوا تھا اور کہا کہ یہ انگوٹھی شہر کے پرانے حصے میں موجود اس شخص کو دے دینا جسے سب بابا جی کہتے ہیں، اسے کہنا کہ وقت آ گیا ہے اور وہ امانت واپس کرنے کا لمحہ قریب ہے۔ مادار نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں چھپا لی اور اوپر کی طرف بھاگا۔ اسے پتا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ وہ جیسے ہی مین باب رفت پر پہنچا، اسے احساس ہوا کہ پہرا پہلے سے سخت کر دیا گیا ہے۔ وہاں اب ہسپتال کے چوکیداروں کے بجائے وہی سیاہ لباس والے لوگ موجود تھے جو زریاب کے کرندے لگ رہے تھے۔ مادار نے سوچا کہ وہ کیسے باہر نکلے گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور کچرے والی گاڑی کے اندر چھپ گیا جو روزانہ رات کو باہر جاتی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ باہر کھڑے لوگوں نے گاڑی کی تلاشی لی، مگر خوش قسمتی سے وہ کچرے کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا تھا اور اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ گاڑی جیسے ہی ہسپتال کی حدود سے باہر نکلی، اس نے چھلانگ لگا دی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرانے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے چارابور ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت تھی۔ وہ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا آخر کار ایک بوسیدہ مکان کے سامنے پہنچا جہاں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نیف سے بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ تیماردار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی اور سلطان کا پیغام دہرا دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چمک آئی جو سلطان کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے انگوٹھی کو اپنے ماتھے سے لگایا اور کہا کہ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم واپس جاؤ اور اسے کہنا کہ امانت پہنچ جائے گی اور شہر کل ایک نیا سورج دیکھے گا۔ تیماردار واپس اسی طرح چھپتے چھپاتے شفا خانے پہنچا، مگر جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچی تھی، نرسیں اور ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسے پتا چلا کہ زریاب کے آدمیوں نے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہ فوراً تہہ خانے کی طرف بھاگا تاکہ سلطان کو خبر کر سکے، مگر جب وہ نیچے پہنچا وہاں خاموشی کا راج تھا۔ سلطان کے سیل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں نہیں تھا۔ تیماردار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا کہ شاید زریاب اسے لے گیا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اسے زمین پر خون کے کچھ قطرے نظر آئے جو سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ خون کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے اوپر کی منزل پر موجود اسی کمرے تک پہنچ گیا جہاں سلطان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سلطان وہاں کھڑا ہے اور اس کے سامنے زریاب گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ سلطان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، مگر اس کا رعب ایسا تھا کہ زریاب جیسا خطرناک انسان بھی کانپ رہا تھا۔ سلطان نے تیماردار کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ تم نے اپنا کام کر دیا، اب میرا کام شروع ہوتا ہے۔ تیماردار حیران تھا کہ
सुल्तान यहाँ कैसे पहुंचा और उसने जरयाब को कैसे काबू किया। सुल्तान ने बताया कि ये जंजीरें तो मैंने खुद पहनी थी और ये ताले भी मैंने अपनी मर्जी से लगवाए थे। जिस दिन मैंने चाहा मैं आजाद हो जाऊं, उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था जब मेरा ये गुनाह यानी जरयाब खुद चलकर मेरे पास आएगा ताकि मैं उसका खात्मा कर सकूं। जरयाब ने रोते हुए माफी मांगी, मगर सुल्तान के चेहरे पर कोई तअस्सुर नहीं था। उसने कहा कि माफी का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। उसी लम्हे पुलिस के बड़े अफसरान कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने सुल्तान को सलाम किया। ईमानदार ये देखकर दंग रह गया कि वो पुलिस जो उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर में छापे मार रही थी, वो अब उसे इज्जत दे रही थी। सुल्तान ने तीमारदार की तरफ देखा और कहा कि अब वो भीत खुलेगा जिसके लिए मैंने ये सारा नाटक रचाया था। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी किसी मासूम का खून बहाया है। मैं तो इस निजाम का वो हिस्सा हूँ जिसे तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। ईमानदार का दिमाग टकरा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुल्तान ने जरयाब को पुलिस के हवाले किया और फिर तमादार के करीब आकर एक ऐसी बात कही जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि अभी तो सिर्फ एक मोहरा गिरा है, असल खिलाड़ी तो अभी बाकी है और उसका सामना करने के लिए मुझे फिर से उन जंजीरों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब भी वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं जो मुझे इससे भी बड़े जाल में फंसाना चाहते हैं। मादान ने पूछा कि अब क्या होगा। सुल्तान ने खिड़की से बाहर देखा जहाँ सुबह का उजाला फैल रहा था। उसने कहा कि अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं वापस उसी सेल में जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि अब तुम मेरे उस भीत के आखिरी गवाह हो। ईमानदार ने सोचा कि क्या ये सब सच है या ये सुल्तान की कोई नई चाल है। वो उसके पीछे पीछे दोबारा तहखाने की तरफ चल दिया जहां अंधेरा फिर से उनका मुंतजिर था। सुल्तान ने दोबारा खुद को जंजीरों में जकड़ लिया और तीमारदार से कहा कि ताला लगा दो। तीमारदार ने कांपते हाथों से ताला लगाया तो उसे महसूस हुआ कि सुल्तान अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसने पूछा कि आखिर आपने ये सब क्यों किया? आप तो अब आजाद हो सकते थे। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा कि अभी वो लोग खत्म नहीं हुए जिन्होंने मेरे खानदान को तबाह किया था। जरयाब तो सिर्फ एक कठपुतली था, असल दुश्मन वो है जो अब भी सफेद सवारी में बैठ कर तमाशा देख रहा है। और जब तक मैं इस सेल में हूँ वो खुद को महफूज समझेगा और यही मेरी जीत होगी। मादान ने पूछा कि वो शख्स कौन है। सुल्तान ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ऐसी खामोशी छा गई जो पहले से भी ज्यादा मुहीब थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना वो भाई है जिसे दुनिया मुर्दा समझती है और जो अब इस पूरे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदेदार बन चुका है। और यही वो राज है जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि उसका अगला कदम क्या होगा और हम उसे कैसे रोकेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उस आग में उतरना होगा जिसका नाम इंतकाम है और जिसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।